I don't know how to say it. It's just, I guess we should talk about this topic also. I have been neglecting it enough. Like, I've been playing games. I'm not talking about this. But I guess it's time I should talk about this topic, which is basically controversial only, but it is very serious and it includes our entire country and how we see it. Because, come on, are you kidding me? Our country is supposed to be so much more, but it is reduced to I don't know how less because of us, our own government, and no one will ever think about to focus on these things. Well, I have three topics that I want to talk about, but for now I'll only talk about one. Other two will come as part two of this video. And if you guys are watching this till here, just subscribe. Just subscribe and like the video, and let's talk about this. I will show the clip of the video later of what I was reacting to, but for now, let's talk about it, shall we? I was watching Crazy Deep's video, and it was about Apurva. That's right, Latent. India's got Latent, the controversy that happened with it, and Apurva, the rebel kid. And I just wanted to give some of my own opinion about this because whenever I look around people and see what they're doing on the internet, I feel like some are genuinely not looking at the entire perspective, like the whole thing as a whole, and just looking at it with a straightforward mind, completely narrow-minded. No, thinking of what's inside other person's perspective or what was their mindset at that moment. And so I'll start with the first one. My opinion, according for India's Got Latent, dude, I absolutely used to enjoy it. It was like one of my times when I used to sit and eat and watch it, laugh a lot. That used to actually make my day. And I did not buy membership, okay, I'll be very honest, I did not buy membership, but I still used to enjoy it a lot. And I it see the Ranveer Abadia does actually, he should be accused because saying these things is stupid online. No one talks about that. Like, it's like completely okay. Okay, you don't joke around. Comedy is not your forte. That's understandable. You don't need to make a joke. You don't need to force it out. You don't need to say anything at that moment. But he said it, and he got what he deserved for it. Okay, and then comes Apurva. Dude, she did not deserve it. I don't know. People will disagree. People will be like, "Oh my God, huh, you're totally not like us, dude. You're not cool. How dare you even be with Apurva? You should, be with us. You should support being against Apurva." No, I'm not gonna be against anyone, and no, I'm not going to be against Apurva because I don't find it that she was like using herself for being a victim or something. I don't look at her that way. I don't see that. I didn't see that video that way. And second of all she did was made a comeback against a guy who said shit about her. Roasting is one thing, but shitting on someone is completely different. And roasting is what is funny, not shitting on anyone. Dude, he didn't say anything funny there. That sentence, "Oh, tere vagina mein to sensation kadam," it's not funny. It's not funny. No one is laughing at that as a joke. It's not funny. And I didn't completely watch that video, but if what she's saying is true, that her friend that guy started completely bullying her friends and shit. He was like, "Oh, इनका bottle हटा यहाँ से कुछ ज़्यादा पी लिया इन्होंने करके." That's not funny. That's not audience interaction with the
comic or something. It's not like that. It's not funny at all. I don't know what people think. Like, oh yeah, this will be so funny. Oh my god. If comedy is not your forte, don't do comedy. If you have some jokes, say then. Even I cut my jokes because I'm not that funny. I know that. If you have to be funny, learn to be funny then. It's very stupid. It's very stupid. She got so much of hate. By the way, these rape threats and these other threats that she got are do come under verbal abuse, but of course it's the internet. Who cares, right? It's just a girl. We'll do anything what we like. We are just some horny men, or we just hate her for some reason because she made a comeback. So we're gonna hate on her. We're gonna send her threats. We're gonna ruin her life. It's so fun, right? Exactly. Just this is India that's becoming. What will we teach our new generation? This go hate on internet on women who made a comeback against a guy who was being shit to them. That's what we're gonna do. Now I'm not gonna say that I'm a feminist or I'm I support men or something, men's rights or something. I'm not like people. That dude is on completely different level. I'm not gonna even take him seriously. My man was like, oh yeah, she's acting like a victim. Oh, she sent me the screenshot. Wait, first of all, I'm pretty sure everyone said that screenshot was fake, and second of all, buddy, what? What? That's so stupid. You're like judging a person's entire personality on one screenshot. You're like, and she said it in front of your face. It's not like she made some alt accounts and said it to your mother, and not like straight to your mother, not to you. Like it's so stupid, man. Like you cannot even be serious about this about his video. It's just not serious at all. You can only laugh at his video of how dumb a person can be. I'm still a kid, but this doesn't mean that I cannot have some sort of maturity to understand these type of stuff. Okay, it's just stupid. It's really stupid. I I I'm not laughing that much because this takes on a serious note, and I completely agree with Crazy Deep. There's complete agreement. So if you guys want to watch the my reaction to his video, I'm gonna keep after this part. Enjoy. So this is the video basically. Okay, and this was about the Crazy Deep. Let's review it together. मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180 बाय 120 है। लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर भी घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे। And the girl that they would, I'm so torn if they saw her alive. And I really. Bro, already video start होता है and this is so goddamn crazy. Like so crazy. Acid फेंकने के लिए तैयार, रेप करने के लिए तैयार. Dude, I just wanted to look कि country किस तरफ जा रही है, इसका क्या हाल हो रहा है धीरे धीरे. Are we sure we are going even right? 2014 में we thought कि we'll have flying cars by now. We'll be like there'll be so much of luxury around, there'll be so much of sci-fi tech around. कुछ नहीं है सब ऐसा यहाँ पे. This is what's happening currently. I don't find it appealing at all. This is madness and pure insanity. हेलो जी, आज जो मैं केस तुम लोगों के सामने लेके आया हूँ वो तुमने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि कैसे एक लड़की ने गाली दी और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, मीडिया, पॉलिटिक्स. पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम बताया था कि कैसे हमारे देश में यूट्यूबर्स को किया जा रहा है.
एक शो के अंदर कुछ गाली देने की वजह से या डार्क गाली ह्यूमर इसके की वजह से, लिए बट हम लोगों को अच्छा फर्क नहीं है। पड़ता, ठीक इसके है। बाद उस वीडियो पे भी कुछ खास व्यूज नहीं आए, जबकि मेरे को लगता है कि वो मेरा फाइनेंस वीडियो था, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, तुम्हारे यूट्यूबर जो तुम्हें एंटरटेन करते हैं तुम्हारे टफ टाइम में, एंड इफ यू केयर अबाउट देम, तो प्लीज एक बार लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना। बट आज वाला जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रेबल किड, ठीक है, उनका कमबैक हुआ है। बट मैं ये सब चीजें बोलने के पहले से कुछ पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमारे देश में किसी स्कूल, और जितना छोटी जगह, जितने छोटी सिटी गांव में वो स्कूल होगा, वहां पे बात ज्यादा सही लगेगी कि अगर भरी क्लास में एक लड़का गाली दे देता है तो मे बी वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक भरी क्लास के अंदर किसी लड़की ने गाली दे दी तो शायद वो चीज सालों बाद भी याद रखी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने चीज देखी कि जिस तरीके से लड़कों को फ्रीडम दी है, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि एक लड़का बीच सड़क पे अपनी बीवी को पीटे, गाली दे, इतना रोज होता है कि हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, हम इग्नोर करने लग गए। लेकिन वहां पे जब एक लड़की आ जाती है उस सिचुएशन में, तो हमारा रिएक्ट करने का जो तरीका है, हमें सडनली हमें कल्चर याद आ जाता है, हमें याद आता है कि अरे गाली देना तो गलत बात है यार, किसी को गाली कैसे दे सकते हो। तो मतलब जैसे कोई लड़की करती है, बेसिकली मैं विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रियलिटी, ठीक है। अब कुछ हो सकता है ये भाई कुछ यूट्यूबर Okay, I might need to watch this again. हमें याद आता है कि अरे गाली देना तो गलत बात है यार, किसी को गाली कैसे दे सकते हो। तो मतलब जैसे कोई लड़की करती है, बेसिकली मैं विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रियलिटी, ठीक है। अब कुछ हो सकता है ये भाई कुछ यूट्यूबर इस वीडियो I'm not clearly sure about this. I mean, हमारी क्लास के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो सारे मिलके एक दूसरे को गालियाँ देते, तो वी आर लाइक कलेक्टिव, एंड अगर कोई टीचर सुन लेता है तो वी आर लाइक सर हम में से किसी ने कोई गाली नहीं दिया, वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वी डू नॉट गिव कर्सेस एट ऑल टू एनीवन, एंड हमारा मुंह बहुत प्यारा है। दिस इज़ हाउ वी डू। बट आई डोंट नो, मे बी दूसरी स्टेट्स के अंदर ऐसा होता होगा कि जहाँ पे लड़की को एक अकाउंटेबल किया होगा बिकॉज उसने गाली दी। आई मीन ओके, बट you know, cursing is fine until you really by heart mean it as nothing. Until and unless it's like, you know, completely just useless slurs, like they don't actually mean something, or you don't have any intention of meaning it something, like you're like just randomly chuti aise karke you're speaking it, इसके पीछे there is no emotion behind it, there's no anger, there's no sadness, there's no nothing, there's no disappointment, there's no sort of emotion. It's just completely just an empty word thrown out into the air. I mean, then it's like यार okay समझ में आता है you're doing that, and I don't think that's anyways against culture in any sort of way. कहीं पे भी बोला है कि you cannot speak these, you have to be like a good you have to be like a good child only and only. I don't think anyone has said that, but there are surely things that are very immoral, but I don't think so cursing comes under immorality or, you know, against the values. There are things that we can speak, maybe we can avoid speaking you know, curses, but okay, I mean that's how it is, people will speak, but dude, come on, some Indians got it so weirded out, they'll speak it like it's like they're you know, as if they're breathing it. It's so weird. Like, stop it. Act like a normal human being. Use curses, but not as a real emotion behind it. Don't actually mean it to someone. Just say it as a joke. That's all. That is all. Meaning it by heart is just so stupid, man. And plus you're making women accountable to this is even more worse. Now I cannot completely deny his claim because, dude, I don't know about other states. Maybe in other states there is stuff like that that's happening. Maybe women are being held accountable for cursing. I don't know that. Maybe that's happening. I am not completely sure about this, but I'm just talking about what happens around me. But this is crazy. This is actually very crazy. And men, there is a lot to talk about men and how they should have been. But
this generation is clearly not going that well. I am included. I'm not the perfect either, but yeah. तो वो भी भाई I अरे agree तू with तो you. सिंपल है भाई, तू तो सी पगलू। ठीक है भाई, ऑडियंस कमेंट करके मेरे को बताना कि मैं इस पॉइंट पे सही हूँ या नहीं। अब अपूर्व वाला केस में फिर से नहीं बोल रहा कि भैया मैं एक समय के शो में गई थी, वहाँ पे उसने कुछ बोल दिया। एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, रिपीट करूंगा, कि जब उस लड़की ने बोला था कि अबे तेने देखी ली है क्या, और उसके बाद गाली दी, उसके पहले ये महाशय जो थे इन्होंने बोला कुछ उसके पर्सनल पार्ट के बारे में टिप्पणी की थी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस लड़के के खिलाफ ना कोई एफआईआर हुई ना इसके खिलाफ कुछ खास मीम बने, लेकिन हम सब ने एक लड़की को पकड़ लिया क्योंकि वो फेमस थी। बिकॉज वो एक कंटेस्टेंट थी, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, अब बाकी के सारे उनके साथ शी वाज जजिंग. That's why that was the thing you wanted to do, because you hated a Gen Z girl who was talking about her own life. I mean, if you think about it, it all makes sense. उस लड़के को hate देना चाहिए था real. He said some stuff that he shouldn't have. Samay tried to stop him. Samay was like, भाई बस कर दे, हो गया खत्म, बस कर दे. But he didn't stop. He thinks comedy, oh my god, ha ha ha, this is so funny, this is roasting. It's not roasting. It's not roasting. It's just so disgusting. It's not roasting at all. You're making a fool of yourself at that point. But no one will look at that guy. No one ever thought of it. Everyone looked that way. I'm probably gonna say it and be with others. This was a move, because he Samay was like, posting it on YouTube and not on OTT platforms, and he was getting a lot of fame out of it and money. So I'm telling you already, I'm pretty sure this was a intentional movement against them. Because dude, even Ashish Chanchalani doesn't deserve it. Bro, he did nothing at all. My guy was sitting there just looking, just listening, and he clearly said it that he cannot make jokes like Samay can. Comedy is his forte, but not that much of comedy that these guys do. Not that dark comedy. And dark comedy is not all harmful if you actually take it lightly without putting much pressure on it at each moment and thinking about it. Or else every part of comedy can be done into something offending if you think about it. Let's continue. गवर्नमेंट को भी अपना फायदा पूरा करने को मिल गया कि यार हमको यार सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल चाहिए, ये ऐसे वीडियो हमारा कैंपेन और इसको सब एक्सपोज कर दे रहे हैं, ये तो बता दे रहे हैं कि हम तो भाई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे व्यूज ले रहे हैं। तो ऐसे समझदार क्रिएटर जो लॉजिकल थिंकिंग भर दे रहे हैं ऑडियंस के दिमाग में, इनको दबाने के लिए बिल तो पास करना है, और जब बिल पास करना है तो क्यों ना इस सोशल मीडिया के सबसे बड़े शो को टारगेट किया जाए। और यार इस एपिसोड से बेटर क्या ही होगा जहाँ पे एक पॉडकास्ट करने वाला बंदा किसी की मम्मी के बारे में कह रहा है, एक लड़की गाली दे रही है, मुद्दा मिल गया। आप जस्ट इमेजिन कि एक शो के बाद जो कि मेंबर्स ओनली में अपलोडेड है, बहुत सारे लोग सडनली ट्वीट करने लग जाते हैं कि अरेस्ट करो, जो कि Plus it's exactly, it's like members only. It's not even like freely available to everyone, so even छोटे बच्चे can watch, everyone can watch. It's not even like that. It's just members only. You have to pay and watch. I did not watch that video at all. I only saw clips of it and nothing else. How can you what? It's not even available to everyone, and not especially to kids. ऐसा तो है नहीं कि छोटे बच्चे they'll steal money from the parents and quickly put it in his membership to watch his videos, right? It's membership video. Who takes it this seriously about a goddamn video? It's not that bad of a stuff that was said. Nothing of that bad. It was always supposed to be on the edge. That's the whole point of the show. It's supposed to be on the edge. Ranveer Ahluwalia said something which was really stupid and very unfunny, just like that other guy that was speaking nonsense. But how Ranveer Ahluwalia said, I'm pretty sure he said it under peer pressure, and I don't know what reason Buddy had for speaking all that. But whatever, it is over. But this is crazy. This is still crazy. This is very, very crazy of how much you have to do. Like, she couldn't even stay at her own house
for so many days and had to move here and there just because people would find her and say her shit and not leave her alone. Imagine this happening with you. This is crazy. Absolutely. कि रोज होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस पे लोग ट्वीट करते हैं कि अरेस्ट करो, लेकिन हमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। लेकिन उस टाइम पे जैसे होता है अरेस्ट करो, मल्टीपल एफआईआर हो जाती है हमारे देश में अलग अलग जगह पे एंड फटाफट सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चीज गवर्नमेंट ने भी सोची होगी, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी में लास्ट टाइम भी बोला था कि गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती इन क्रिएटर्स या यूट्यूबर या जिसको भी वो हरेस कर रहे हैं उस पर्सन का, उसकी मेंटल हेल्थ का। यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि जब 3 महीने पहले सब कांड हुआ, जब इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, सडनली हमारे देश में जो कल्चर बचाओ लड़कियों गाली दी सकती है, या मैं बोलूं हमारे देश में जो मिसोजिनिस्ट है, ठीक है, ये जो लड़के हैं भाई जो औरतों को बेल्ट मारो, औरतों ने गाली दे दी, अब अरे भाई क्या बात कर रहा है भाई। इन लोगों ने 3 महीने पहले जब ये केस स्टार्ट हुआ, सडनली एक लड़की को इस तरीके से धमकाया गया कि उसने अपनी वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताया कि कुछ उसको ऐसे डीएम आया कि मेरे को पता है कि तू कहां पे रहती है, मैं तेरे घर पे आऊंगा और ये सब चीजें करूंगा। That is crazy. That is. मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स के हिसाब से रेबल किड अगर आप Absolute insanity. Like, grow up, get better, stop doing these things on the internet, do something else. There are a lot of things you can do, not just this, but whatever, man. This is so insane. आके अपनी स्टोरी सुनाती है, बताती है कि मेरे साथ पिछले 3 महीने में क्या हुआ, तो वो एक पिया स्टूडेंट है, वो विक्टिम कार्ड है। मैं रो दी यार। मैं Guaranteed funding your project with journal publication. We create 100% unique projects with इस टॉपिक को। Oh, how can you even trust a girl? Here she's crying. Of course she's acting it all out. It's so much of acting. Who cries about her mother like that? Even we handle it. Why can't she handle it? We were just joking. Oh my god, she's acting. Oh my god, she's playing victim card. Crazy people. को ऐसे ले जाता कि यूट्यूबर्स गलत हैं या पूर्वा गलत है, यूट्यूबर्स की कंट्रोल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं बस एक चीज देख पा रहा हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स व्यूज के चक्कर में एक 22-23-24 साल की लड़की को परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें रीजन देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर में किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सिंपल से बताता हूँ। आप कह रहे हो कि विक्टिम कार्ड के लिए विक्टिम कार्ड, इस टॉपिक पे विक्टिम कार्ड 3 महीने से किसी लड़की को हत्या किया जा रहा है, एसी ऐसे मिल रहा है, जिस लड़की का पूरा कंटेंट है सोशलाइज करना, पब्लिक में जाना है, उसको वहां पे कंटेंट बनाना है, उसको जिस तरीके से डीएम आए वो भी लाखों लोगों के, उसको नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं। उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो पिछले 3 महीने से कभी इधर भाग रही है, क्योंकि उसको उसके वकील उसके मैनेजर कह रहे हैं कि भाई तू सेफ नहीं है। पहले अपनी स्टोरी के अंदर अपोलॉजी कर चुकी है, बता चुकी है कि उसको कूल बनना था वहां पे, जिसके लिए वो अपोलॉजी मांग चुकी है, लेकिन उसके बाद किसी पॉइंट पे वो रो रही है, तुम कह रहे हो कि अबे विक्टिम कार्ड नहीं। उसको ये रोना, उसकी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करना गलत है, या उसका पीआर स्टंट करवाना भी गलत है, जिसका मोटिव है कि जो लोग उसको दे रहे हैं ना दे। आपके हिसाब से अगर उस लड़की ने एक बार एक गाली दी है या एक गलती की है, वो डिजर्व। I'm just gonna say nothing is gonna change anything. I'm pretty sure this all will be going even later on. No one actually gives a damn about any of this. There will be people who will be like, oh, who cares, we'll continue what we're doing, and we're doing it so good, we're enjoying it, oh my god, it's so fun teasing someone, or doing this to someone, because this is very this is so goddamn weird. And I mean, she has like freedom of speech to talk about her own experience about it. That's what her channel is about, talking about her life. So I don't think anything about this is related to hating on her or being, oh, she's playing a victim card. There's nothing related to that. Literal buffoons, man. करती है ये सब। अगर आप नहीं चाहते कि ये सब रुके,
तो क्यों नहीं रो सकती वो बंदी? और मैं रोने को ही नहीं कह रहा कि रो गए भाई, गलत कर दिया है, सही करा। एक लड़का अगर उसको एक ग्रुप में 7 या 8 लोग हंस कर दे, मैं 100% श्योर हूँ कि वो किसी के सामने नहीं लेकिन घर पे आके शॉवर के नीचे एक बार तो रोएगा। वो कैमरे पे नहीं रोएगा क्योंकि शायद उसमें गट्स नहीं है, शायद उसको लगेगा कि वो लेस मस्क्यूलर लगेगा अगर वो पब्लिक के सामने रोएगा। अपूर्वा के अंदर बहुत गट्स है, उसके ऊपर मैं पास में रोज बना चुका हूँ, बट एक चीज जो मैंने बोली थी कि बहुत वक्त होते हैं और जो है रियल है। उस स्टोरी के अंदर उसने बहुत जगह अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करी है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि कैसे पास्ट में उसने उसके पापा मम्मी के बारे में बहुत गलत थॉट्स रखे थे, लेकिन इस टफ टाइम में वही उसके साथ थे जिसके बारे में हमने भी कॉल आउट किया था। लेकिन हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं कि उसने एक्सेप्ट की ये चीजें, कैसे उसके पापा को लेकर उसके थॉट्स गलत थे, कैसे उसके रियल फ्रेंड्स थे, कैसे उसने कूल बनने के लिए वो सब चीजें बोल दी थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये शो का मतलब है कि फनी बनना है और मैं फनी बनने के लिए बहुत बेवकूफ बन गई। हम इन सब चीजों को इग्नोर करके एक पार्ट जहाँ पे वो बता रही है लड़कियों की सीरियस प्रॉब्लम कि कैसे उनके रिलेटिव्स उनको बचपन से शेम करते हैं, कैसे वो घर में सही फील नहीं करती है, कैसे उसको ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो उस पॉइंट पे अपनी स्टोरी सुनाते वक्त रो रही है और हम सिर्फ पूरी वीडियो 33 मिनट 32 मिनट की छोड़ के एक पॉइंट जहाँ पे वो रो रही है उस पार्ट को हम कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड। एक जगह उसने बोल दिया कि ये वीडियो उसको पता है बहुत व्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत व्यूज आएंगे, उसको पता है। यार आप लोग उसके नाम पे व्यूज क्लिकबेट करके व्यूज खींच रहे हो, उसको पता है कि उसके नाम पे व्यूज आएंगे, अभी वो ट्रेंडिंग है, लेकिन उसने एक जगह डिसाइड किया कि इस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी मैं एक चैरिटी को एक सही जगह दे दूंगी। और उसने ये चीज भी बोली कि मेरे को पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे पीआर स्टंट है। आपने 32 मिनट की पूरी वीडियो छोड़ के इस पार्ट को बोला क्या नहीं पीआर स्टंट है, लोगों की भलाई करने का नाटक कर रहे। एक 45 साल का बंदा, आई एम सॉरी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इस पे। आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि एक 24 साल की लड़की, 23-24 साल की लड़की किस चीज से गुजरी होगी पिछले 3 महीने में, जब वो ये कहती है एक पॉइंट पे आके कि उसकी मम्मी के डीएम के अंदर जाके लोगों ने गाली दी है और इसकी वजह से उनका बीपी बढ़ा है, वो एडमिट हुई है। कैसे एक बंदा इसको हैंडल करेगा कि आज उसकी एक गलती की वजह से उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है। वो इस पॉइंट पे रह रही है विक्टिम कार्ड, तेने भी तो लोगों के डीएम में जाके गाली दे दी। ये स्क्रीनशॉट की वजह से इतना बवाल हुआ है, ठीक है। ये this was the screenshot that I was talking to you guys about at the starting of this video. This one where she says, I'm pretty sure they said that it was not real at all and मेरे को आपने भेजा भी था, मैंने देखा भी, और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, जिस बंदे को इसने ये लिखा है, चलो पहली बात कि उस बंदी ने कह दिया कि ये फेक है, आपके पास वो पर्सन नहीं है जिसको डीएम में गया था, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये रियल है, लेकिन मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि रियल है। मेरे को ये चीज बताओ, जो वीडियो डिलीट करवाने का कह रही है, वो वीडियो आपने देखी, हो सकता है ना कि उसका मॉड पिक्चर बनाई हो या कुछ गलती बना दिया हो तो उसने गाली दी है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर पे कोई पर्सन है, फीमेल पर्सन है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक पर्सन को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर उसके खिलाफ किसी ने की भद्दी वीडियो बना दी, बहुत गंदी, जस्ट बिकॉज कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैंने किसी, but the situations are also sort of different ना। यहाँ पे उसकी जिसने बंदे को भेजा है उसकी मदर को डायरेक्टली तो ना बोला है, उसकी मदर को डायरेक्टली तो ना बोला है, उसको उस आदमी को बोला है कि मैं ऐसे कर दूंगी ये मदर को। दैट इज लाइक एंड इट्स नॉट गोना बी दैट सीरियस अबाउट इट। You can be like, oh my god, what the hell, but he was clearly saying cry करके. This means he was very unaffected by this. तो अपलोड क्यों करी ऑनलाइन ये, अगर स्क्रीनशॉट अगर ऐसा था तो, अगर इतना ही तुमको अनअफेक्टेड फील हो रहा था तो दिस इज क्लियरली फेक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, दिस इज लाइक डिफरेंट सिचुएशंस। वहाँ पे सीधा उसकी मदर के डीएम्स के अंदर बात हो रही है, उसकी मदर को इतना कुछ सुना रहे हैं कि उसकी मदर पूरा हॉस्पिटलाइज हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑल दैट, बिकॉज वो सिक पड़ गई कि ये सब वो होते हैं, क्योंकि वो नहीं हैंडल कर सकती ना, ऑफ कोर्स उनको तो ना पता है ये सब क्या है। ये उस वाले उसमें थोड़ी ना हो रहा है, ये तो उसमें बस ऐसे ही डायरेक्ट था, कन्वर्जेशन किया, बोला एंड उसमें कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं, कोई उतना अफेक्ट नहीं था, बस इट वाज जस्ट अ स्क्रीनशॉट हो गया। अब वो रियल भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई मिथ टाइप के उसमें क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट के उसमें फॉर्म में तुम एक एविडेंस की तरह दिखा के यू कैन नॉट से कि भाई दिस शी इज़ लाइक दिस, she would talk to her parents like this is this type of girl. You cannot decide everything just by a basis of a screenshot. अगर तुमको किसी बंदे का जानना भी होता है then it takes multiple situations, multiple moments जिसके अंदर तुमको पता लगता है कि बंदा कैसा है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट will never say, and I completely agree with him
तुमको नहीं पता कि उस रील के अंदर क्या था, उस वीडियो के अंदर क्या था. Maybe there was mock pictures, maybe there was way more than that. Maybe it was like, you know, her video sort of verbally abusing her, which she did not like. Maybe it was just against her and she just didn't want it. There are many people जिनको like अगर तुम उनके against कुछ बनाओगे तो they'll be like completely hating towards it and वो copyright claim वगैरह कर देंगे. That is all on their thing. That is completely different. That's their personality. You cannot add this whole segment to the part of where she had to go through something. This is crazy. किसी पर्सन को राइट नहीं दिया है कि मेरी वाइफ या मेरी मम्मी या मेरी होने वाली डॉटर के बारे में कुछ भी अनसेंट वीडियो बनाए, मैं ऐसे ही गाली दूंगा और ऐसे गाली दूंगा, मैं घर में घुस के शायद मैं शायद भी चला दूं, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. मैंने अपनी फैमिली को नहीं लाया सोशल मीडिया पे और आप लोगों को राइट नहीं दिया कि मेरी फैमिली को सीखो. तो जब तक हमने वो वीडियो नहीं देखा कि वो क्या वीडियो था, अपूर्वा ने क्यों गाली दी, हालांकि फेक लेकिन फिर भी आई गेस एक्सपेक्ट करता हूं जब आप कहते हो कि मैं बेवकूफ हूं, मैं ब्लंड हूं, तो जब तक आपको पूरा नहीं पता कि उसने गाली क्यों दी, ऐसा क्या वीडियो था, हो सकता है शेयर. तो क्या आपके लिए सही है कि अगर एक मीमर एक पर्सन किसी को शेयर करता है, मोड पिक्चर बनाता है, कुछ भी गंदा करता है, तो वो लड़की से गाली दे सकती है. किसी की मम्मी एडमिट है, वो रो रही है बता के कि यार तेरे चक्कर में मम्मी एडमिट हो गई, कभी क्या वो रो रही है, विक्टिम खाते हैं. Welcome to How to Start a Startup. In this course, I'll share with you the exact steps I took to grow my Seriously? own business. Contact us. Yeah. मेरे को अपूर्वा ने पैसे नहीं दिए बोलने के, लेकिन मैं पिछले 3 महीने से इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई जो अपूर्वा को मीडिया एक्सेस कर रही थी. मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फुल सपोर्ट किया इन यूट्यूबर्स को. मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी लेटेंट पे तभी मैंने फुल सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं खिलाफ नहीं हूं कि यार उन्होंने गाली दिया. मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि किस तरीके से गवर्नमेंट ये जो कम्युनिटी हमारे बनी हुई है हमारे देश में धर्म बचाने के लिए दंगे कर देती है. अरे किसी की बस बुला के किसी को मार के तुम कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो यार? किसी के पुतले खड़े हो, किसी को धमकी दे रहे हो, ये किस तरीके का प्रोटेस्ट यार? आपको एज ए यूट्यूबर एज ए इन्फ्लुएंसर इनके साथ खड़ा होना चाहिए. ये देख के लगे कि एक्शन इतने भी गंदे एक्शन नहीं थे. और अपूर्वा के पहले उस लेटेंट शो के ऊपर जाने कितने लड़कों ने कुछ भी बोला, लेकिन एकदम से बवाल हो गया जब एक लड़की ने गाली दी. मैं तो भाई इस चैनल पे कभी भेदभाव नहीं करता, सबको गाली देता हूं, लेकिन ये हुआ है हमारे कंट्री के अंदर. मतलब कितनी अजीब बात है. हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को जापान में बाहर लोग ऐसे सलाम ठोकते हैं. व्हाट कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है, हम कितने अलग अलग लोग कितने अलग अलग रीजन के साथ रहते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं. जब मास बुकिंग की बात आती है, थ्रेट्स की बात आती है, तब हम चुप बंदी आके अपनी स्टोरी रखते हैं. एक कार्ड भाई हैप्पी हस्बैंड एक इन्फ्लुएंसर है, एक एक्टर को तुम लोग ये नहीं कर सकते क्या एक्टिंग कर रहा था यार, एक्टिंग जज को तुम ये नहीं कर सकते. मैं जजमेंट तू को जजमेंट देगा. एक इन्फ्लुएंसर का काम है, उसको व्यूज मिलेंगे, उसको ब्रांड मिलेंगे. व्यूज पे तो अगर कोई पीआर स्टूडेंट जिसको लाखों रुपए दे रही है, अगर वो कर भी रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है. और ये चीज अगर कोई ऐसा रैंडम बंदा बोल दे तो मेरे को समझ भी आए एक इन्फ्लुएंसर हो के एक यूट्यूबर हो गया, उस पे एलिगेशन लगा रहा है कि पीआर टीम में वो तो काम है ना उसका. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पर मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब एक लड़की इंडिया में पहली बार कैमरे पे आके बहुत सारी चीजों की बात कर रही है, जैसे कि कैसे उनको हत्या किया जाता है, कैसे कई सारे रिलेटिव उनको बचपन में शेम करते हैं, बॉयफ्रेंड कर रहा है, रिलेशनशिप आने के बाद किसी लड़की ने राइट नहीं दिया कि जब ये सब चीजें उसने ओपन कितने बड़े नंबर्स के सामने पूरी इंडिया के सामने रख दी. एंड पता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैंने नोटिस किया है कि काफी सारी लड़कियां हमारे इंडिया में, काफी सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स अब अपनी स्टोरीज पे, ठीक है, ये सब चीजें पोस्ट करने लगी कि ये चीजें होती है. मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला हमारे इंडिया में जब आप बोलते हो ना कितनी सही जगह है, सेफ प्लेस है, हर लड़की को उसके घर में कोई ना कोई पर्सन कर रहा है, चाहे वो कजन ब्रदर हो, अंकल हो, पापा के फ्रेंड हो, भाई हो. हम एक तरफ ना बहुत छोड़ना आते हैं कि भाई हमारा देश में देखो, ये अमेरिका में तो साथ में नहीं रहते, हमारे यहाँ पे साथ में रहते हैं. कांड की बहन से पूछो, कभी से पूछो, बेस्ट फ्रेंड से पूछो. फाइनली किसी लड़की ने इस चीज को इंटरनेट पे लाया, आवाज उठाई, ठीक है. काफी सारी लड़कियां जो उसके सपोर्ट में आ रही है, ये तो मम्मी बना रखी. अरे भाई तुम 34 मिनट के वीडियो के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको छोड़ के तुम उस लड़की पे एक 25-24 साल की लड़की, मैं नहीं बता रहा, मैं छोड़ 23-24 साल की एक 24 साल की लड़की को पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ की पॉलिटिशियंस ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस ने, एक कम्युनिटी ने, धर्म ने, कई सारे लोगों ने, स्पेशली ऑडियंस ने, और ऑडियंस में बैठे लोगों ने इतना गंदा टेस्ट उस लड़की ने भी पोस्ट नहीं की थी. अब जब वो लड़की अपनी साइड की स्टोरी रखी और उसके अंदर वो सब चीजें बता रही है कि कैसे वो समय से मिली, कैसे वो लेटेंट में गई, कहां पे उसने पूर्ण करने के लिए कुछ किया, बीच सब कुछ. इस बीच जब वो बता रही है कि नेगेटिव पार्ट क्या था, कैसे किसी बंदी को रोना नहीं आता, और हम उसके पूरी वीडियो में उसकी जो ब्रेवरी थी कि यार इसने आई और इसने स्टोरी लगी, इसका साइड लगा, इसने ऐसे स्क्रीनशॉट भी बताया कि कैसे उसको लड़के ने क्या. हम उन सब चीजों को इग्नोर करके क्या करें भाई, रोनी भाई लड़की रो कैसे थी, और लड़की ना रोए तो अपने रोए और रोती. अरे क्यों कर रहा है? तुम क्या चाहते हो भाई? वो पर्सन सोशल मीडिया छोड़ के चली है, वो पर्सन को जिंदगी भर इस तरीके से लोग थ्रेट हैं, वो पर्सन जस्ट इमेजिन कि जिस बंदी का काम ही सोशलाइज करना है, ब्लॉग बनाना है, इधर उधर कॉन्सर्ट में जाना है, उसका काम है, उसका कंटेंट ये है. एक बंदी कैसे सेफ फील करेगी लाखों मिलियंस में जो थ्रेट्स आए डीएम में, उसके बाद उसके दिमाग में कैसे नहीं चलेगा कि यार मैं किसके साथ सेफ हूं, किसके साथ सेफ नहीं हूं. आप लोग उसकी पुरानी 10-12 महीने पुरानी वीडियो जो कि शायद जब वो 20 साल की होगी, 21 साल की होगी, तब उसने कार में ड्रिंक की वो वीडियो एंड वो कहीं पे जाके उसने बोल दिया, या वो थोड़ी ओपन हो गई, उसने किसी कोई शॉप में जाकर वीडियो बना दी. आप उन सब टिप्स को इकट्ठा करके कोलाज बना के आज वाली सिचुएशन का अप्लाई करें. 3 महीने पिछले 3 महीने में उसको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, कहां वो पूर्ण करने के चक्कर में बहुत कुछ किया होगा. और उसने एक्सेप्ट, हम वो एक्सेप्टेंस जो उसने लाया है उसको इग्नोर करके उसकी पुरानी वाली इमेज को आज भी सामने लेके हम एक 24 साल की लड़की को इतना हरेस होने के बाद भी कैसे जीने देंगे भाई कि नहीं यार अब तेरा कमबैक कैसे हो गया, अब तो तू भी देगा.
हम ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कुछ मीम्स देखे अभी कि लोग उसको कंपेयर करते हैं रणबीर बाबा ने, रणबीर बाबा ने जब भैया कंपेयर करा तो उसने कोई रोना थोड़ा नहीं करा, ये लड़की ने ये लड़की आती होती। इन दोनों की एज देखकर आपको इन दोनों के एक्सपीरियंसेस पास्ट में, इन दोनों की जो लाइफ है बहुत अलग अलग है। अब लोग एकदम बिग फेम में है क्योंकि बहुत रिलेटेबल है जेंजी ऑडियंस के लिए। हमारे देश में जेंजी ऑडियंस जो है वो ब्लॉग जा रही है, कल्चर है उनका अपना ही है। वहीं पे एक पर्सन लड़की आके अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है, लोग इसीलिए देखते हैं। मैं बोलता नहीं, मैं लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर के यूट्यूबर कह रहे हैं यार इसमें सब जेलस है ना उसकी सक्सेस से कि यार ये लड़की 24 साल में इतनी फेमस कैसे होगी। हमें इसका क्लिकबेट बनाना पड़ रहा है। हमें अपने थंबनेल पे एक बार माइंड लेवल पे पता चलेगा इसकी फोटो लगानी पड़ रही है। आप इंस्टाग्राम पे आपकी खुद की पेज हटा दो, आपने एक रील पोस्ट करी जहां पे सिर्फ ये दिख रही है, आपको मीम पेज नहीं हो कि आपने अपने ओपिनियंस क्या इन सब चीजों को छोड़ के इसकी एक एडिट डाली है एंड वो एडिट आपकी यूजुअल वीडियो से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप एक बार सोचो कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपके यूट्यूब पेज पे आपसे ज्यादा वो बंदे रिलेवेंट है एंड शायद यही रीजन है कि आप जो आपका माइंड है वो कह रहा है यार इसमें हेट देते हैं। 34 मिनट की जो स्टोरी है तो 34 मिनट की स्टोरी के अंदर उसने सब चीजें बताई है पिछले 3 महीने एंड एज एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, उसको राइट है कि वो अपनी स्टोरी जो के साथ हुआ है वो हम लोग अगर खुद को रिस्पांसिबल यूट्यूबर या क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर कहते हैं, हम लोगों को यहाँ पे ये चीज देखना चाहिए कि बेसिकली पॉइंट क्या है। पॉइंट ये कि उसने एक शो में गलती करी, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ड्रामा हुआ, लेकिन सोशल मीडिया बुलिंग जो है जो लोग बिना डीपी के किसी के भी डीएम में घुस के इस तरीके I don't find it it's a mistake. I think everyone is just overreacting way too much. I guess people are like, oh my god, ये क्या बोल दिया, मुंह से कैसे निकल गई बात। नहीं जरूरत है ये सब guys. It's just words. बोला जाता है and people forget after a while. Just move on. कि वो किसी के धर्म को, किसी की भी उसको अभी हार्म नहीं किया, कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे कुछ भी गलत नहीं बोला है। जस्ट रिलैक्स। इट वॉज जस्ट सपोज टू बी अ फन चिल करने के लिए वीडियो। इट्स नॉट सपोज टू बी अ सीरियस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट नाउ इट इज़ एंड इट्स ग्रोइंग मोर एंड मोर डीपर एंड दिस रैबिट होल गोज वे 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 डीप। अब मैं उस रैबिट होल के बारे में तो एकदम बात नहीं करना शुरू करूँगा बिकॉज हालांकि एक तो मेरा चैनल ग्रो हो रहा है एंड आई स्टिल हैव अ लॉट एल्स थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट देयर आर 2 more things I will talk about later in my next 2 parts. इससे थ्रेड है वो लोगों के साथ नहीं होता है। वो मुझे लगता है इंडिया में हर लड़की के साथ होता है। हर किसी लड़की के डीएम में जाओ, मिलेगी बिना कंसेंट के। भेज दी बस पेज पे बनूंगा भाई, भेज दी भाई, हमको लड़कियों को कर हम देख रहा भाई ये तो देखेंगे और तुझे लाइक भी करना पड़े और नहीं करा तो यार लड़के चाहिए अगर किसी को समझ नहीं आएगा। मैं बोलता हूं ना रोज कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आती है हमारे लड़कियों को किसी फेस्टिवल में, किसी क्लब में, किसी पार्टी में आ रहे स्कूल की लड़कियों को। मेरे को लगता है कि जो पोस्ट होता है ना वहां पे इतनी बड़ी फाइलें रोज की पैक होगी, पर वहां के जो जुडिशियरी हमारे जो उन लोगों को टाइम नहीं है उसको खोलने का। ऐसे रोज के आते हैं हमारे देश में वुमेन को कैसे दबाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक लड़की को इतनी मास बुलिंग का सामना करना पड़ा। हम इन्फ्लुएंसर्स, हम यूट्यूबर्स उसको कह रहे हैं हमारी यार इन सब चीजों का तो जेल में उसका भाई इसमें दिक्कत का तेरे होने में दिक्कत है, कैसे शेयर कर सकती है अपने मतलब की तरफ ये वो होगा तो ऑडियंस को पीआरटी में तो है तो क्या उन्होंने ऑडियंस पे वहां तो 3 महीने लगा भी किसी चीज को लेकर परेशान करे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली बार आप जो फेस कर रहे हो ना आपकी एज पेज होनी चाहिए, क्यों नहीं हो गया इस बार फुल्ली साइड में रियलिटी कि हां भाई मैं तेरे साथ हूं। आई विश कि मैं और कुछ भी कर पाता, अगर मैं ऐसे रियल रहा था मुझे लड़ता बड़ा लगा भी अपने चैनल पर अपने तरीके से। ये केस सिर्फ रिलेट करनी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी एक बहन जैसी इन्फ्लुएंसर है बहुत अच्छी उसमें निशु की वाली, उसके साथ दिल्ली में जो हुआ कितने यूट्यूबर्स ने उसका आवाज उठाई, कितने ने उसकी स्टोरी भी शेयर किया, ये भी दिखा दिया शेमफुल है दिल्ली पुलिस को क्या नहीं रहे नहीं कुछ। लेकिन जैसे कोई फेमस इन्फ्लुएंसर बोल देती है हम उसके खिलाफ फटाफट सबकी वीडियो आ रही है या न्यूज़ ट्रेंडिंग डालो है जो वीडियो बनाओ है जो ब्रांड आएगा पैसा आएगा उसको कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है क्या कर वीडियो बना। मेरा पॉइंट बस इतना था ही जब मैंने पहले वाले वीडियो को देखा था मैंने उसके ऊपर रोस्ट किया था, फनी रोस्ट था, तब भी मैं उसके ऊपर बहुत झूठ लेके आया था कि तू कल्चर खराब कर रही। मैं समझता हूं यार कि हर बंदा इन्फ्लुएंसर अपने तरीके से सीखता है, लेकिन उसके कंटेंट में कुछ है नहीं। ये पीछे तमाशा का पोस्टर लग रहा है, मैंने उसको बोला कि उसका कंटेंट है ना उसका पूरा सोशल मीडिया ना इंस्पायर्ड मूवीज से। वो एक फिक्शनल लाइफ में जी रही है बंदी, वो हर बार इसी मूवी के जो ट्रैक सॉन्ग थे वो बैकग्राउंड लगाई है गाइस इधर इधर मैं जेंजी नहीं हूं ना मैं इसको दूसरी तरह वो ना जेंजी बनता हूं। मैं उसका कंटेंट समझ में नहीं आता है, बहुत बार मैं इग्नोर कर देता हूं। बट इस पॉइंट पे देखो सही है एज अ यूट्यूबर और मैं उसको बेस्ट कंटेंट चैनल देता हूं इंटरनेट पे, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसका साइड पिछले 3-4 महीने से एक चीज जो तुम सभी ने नोटिस की होगी कि सडनली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाम घुसाने लगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसका रीजन सब बंदे ने अपने हिसाब से असम्पशन लगाए कि ये गवर्नमेंट को बिल पास करना है। गवर्नमेंट ने ये नया अनाउंस किया है कि लाइक यू नो अब वो हमारे वो चेक कर सकती है पर्सनल चीज़ें, तुम लाइक जैसे हमारा अकाउंट है वो चेक कर सकती है, अगर हमारे चैट्स हैं वो चेक कर सकती है गवर्नमेंट, एंड दे हैव फुल एक्सेस टू डू दैट। देयर इज़ नो प्राइवेसी भाई, प्राइवेसी गई, तुम अपने ग्रुप चैट्स बचा के रखो, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लीव दैट एंड अभी I'm pretty sure they're making more strict laws towards jokes like, wow, jokes की तरफ, and they और भी 1-2 चीज़ें हैं what they're doing।
गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी फैले। गवर्नमेंट को अगर वल्गैरिटी से इतना प्रॉब्लम होता तो गवर्नमेंट की जो इंस्टाग्राम पे मीमर्स लोग एडिट बनाते हैं लड़कियों की एमएमएस वीडियो, किसी बॉयफ्रेंड ने किसी लड़की की वीडियो लीक कर दी और Oh please, let's not go that deep. पता है क्या? This is the rabbit hole that I'm talking about. This goes way more deeper. Like covers our whole country, and उस country के अंदर भी तुम गलियाँ चले जाओ, गलियों के अंदर you think oh my god इतना deep जाता है कोई चीज़. Let's keep this one thing aside. अगर गवर्नमेंट को सच्ची में वल्गैरिटी की इतनी परवाह थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोर ऐसे लेकिन कम्प्लीटली ओपन रूल्स क्यों बनाए जिनको तुम इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो या फिर लूप होल्स ढूंढ सकते हो उनके अंदर. व्हाई डिड दे मेक समथिंग लाइक दैट? आई मीन दे कुड हैव इजीली डन made more strict laws, maybe more compact laws, so there was no loopholes, there was no chance for any loopholes and any sort of that we can use to exploit it. But here we are, and mostly there are not the people are not the one that are always exploiting it. There is the government also, but एक small part of community, I'm not saying one community, I'm saying a group of people जो exploit करते हैं इस चीज़ को. तुमको random लोग इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो इंडिया से होंगे और पूरा exploit कर रहे होंगे. कुछ तुम जैसे लोगों की वजह से एक्चुअल में हमको इंडिया पता नहीं फालतू का हेट मिलता है बाकी के कंट्रीज से. Like if you hate India guys, if you hate India please follow the account. Why is there hate about India all of a sudden? This also needs another video because this also goes deep. It's funny how everything has this whole circle around it, and you need time to sit and discuss about this to see अगर लोग actually में they'll pay focus on this or not. But I don't think they will. I don't think any action will be taken. As if पहले कभी हुआ था action लिया था. मोदी जी ने अभी आके उसमें एक केस के अंदर अभी एक्शन लिया है. The part 2 I will be making will be about that only, and so I will discuss about that in that. But for now I'll keep it till here only. I just watched the video now. Yeah. उस वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पे फैला दिया गया, पूरे सोशल मीडिया पे. और इतना ठीक है, उसके बाद जो मीमर्स लोग हैं वो उसकी एमएस वीडियो के ऊपर कट करके मीम बना रहे हैं जो हम लोगों ने शेयर कर रहे हैं. हम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वेयर इज ह्यूमैनिटी, वेयर इज लिंक, आपको लिंक दो, हमको हिलाना है इस वीडियो पे. और एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बच्ची के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत गंदा था. हमारी गवर्नमेंट को इतना फर्क पड़ता है उसकी परमिशन होती और मेरे को फर्क पड़ता है. तो मैंने तुमसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं ऑन ग्राउंड इसके खिलाफ कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना नोटिस कंप्लेंट सब तैयार कर लिया है. अभी कुछ दिनों के अंदर मैं अपने शहर इंदौर के अंदर बहुत सारे ऑफिस में सबमिट करके आऊंगा. उसके बाद ये लोग उस फाइल को दबाना दे इसलिए हम एक्शन लेंगे. अगली वीडियो होगी ताकि मैं इन रियल लाइफ अब क्रेजी दीप बन के जीता हूं. जब मैं बोल रहा हूं तो आप सारी ऑडियंस समझ नहीं आएगी, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर्स को चुप यार स्टैंड करो, इनमें डिफरेंस बता देता हूं ऑडियंस को. आप लोगों को भी समझ आ रही होगी कि हम जब यूट्यूबर्स होते हैं, जब इन्फ्लुएंसर होता है वो पूरा टाइम कंटेंट क्रिएटर होता है, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी भूल जाता है ना. वो क्रेजी दीप बन के जीता है. हर तरफ बस कंटेंट है, ये देख लो वो देख लो, ट्रिप पे जाते हैं फैमिली के साथ. वहां पे ध्यान क्या है कि ब्रांड कोलैबोरेशन क्या बनाऊंगा मैं इतना कर. लेकिन एक चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया मेरे लिए घनी तरह है. अजीब लगेगा सुनने में या मेरे को कोई डिसऑर्डर बता देंगे यूट्यूब में, हां तो मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता हूं, मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लेता हूं कि हमारी कम्युनिटी है. आई गेस हमारे इंडिया में शायद इस चीज की कमी है, ह्यूमैनिटी की भी कमी है. रोज वाली जिंदगी में ना बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है, कि अबे डिल्यूजन है देखो, तो अबे ये वो लोगों ने लास्ट टाइम ह्यूमैनिटी वर्ड का यूज किया था. अब ये वर्ड का यूज नहीं करते ऐसे डेली लाइफ में, और हम इसका मीनिंग भूल गए. मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को और इन रोस्टर्स को और इन यूट्यूबर्स को ये वर्ड याद दिलाना चाहता हूं कि ये सब भूल जाओ कि वो इन्फ्लुएंसर है या वो लड़की है या पिछले टाइम में क्या हुआ है, उसने क्या गलती की. मैं बस चाहता हूं कि प्लीज एक बार ये सोचो कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक 23 साल की लड़की है, उसने बहुत ज्यादा हैंडल कर लिया सब चीजों को, एंड वो बहुत ब्रेव है कि उसके बाद भी वो बंदी आज ऐसे हंस के मस्ती में अपनी गलती बता पा रही है. उसकी जगह कोई और लड़की होती, वीक होती, और उसे जाती है. और सिर्फ गवर्नमेंट की रीजन नहीं उसको मानने के पीछे, या जो दल है या इंफ्लुएंसर्स है, या हम लोग रिस्पांसिबल, क्योंकि हमने कभी इस कम्युनिटी को फील नहीं होने दिया. जब किसी यूट्यूबर के साथ गलत होता है तो हम या तो उसके खिलाफ हो जाते हैं या सपोर्ट में जाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि कम्युनिटी होना चाहिए. हाँ, जो लोग उसको वायलेट कर रहे हैं, जो गंदा कंटेंट बना रहे हैं, कोई समझ पर्सनल वीडियो नहीं कि वो अंडर एज लड़की के साथ कर रहा है और उसके बाद हम लोगों ने मैंने उसकी वीडियो बनाई. मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी के जैसे इन्फ्लुएंसर्स पार्ट बने, बट चाहता हूं क्या एक कम्युनिटी. I'm just gonna give you guys a spoiler. This is the third part.
second part was the one जो यहाँ पे side में उन्होंने वो दिखाया था, क्या बोलते हैं, girl was drugged वाला, that part. That will be the third part, Teeth Pasana wala. And this will be more like a funny video because I'm genuinely tripping about it. It's not gonna be reaction video, it's just gonna be a fun, serious video, that's all. बोले जो ग्रो होता है ना ऐसा लाइफ में कि एक बंदा के साथ ऐसा किसी बंदे को बंदी को छोड़ रहा है, चीजें रोक लाती आती है हमारे साथ भी होता है, तो इन्फ्लुएंसर पॉइंट होना चाहिए यार, क्यों ना जब से इन्फ्लुएंसर गलत रहा तो खड़े और हम कैसे खड़े हो रहे हैं, वो कैसे यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रियलिटी ने वीडियो बनाई है उसका रोना है वो बहुत ह्यूमन है, वो नॉर्मल है, और मैं नहीं चाहता कि कोई पर्सन जो कि एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है हम उसके ऊपर अपनी कॉन्स्पिरेसी निकालें। और मैं जब सोशल मीडिया पर रेगुलर ट्वीट करता हूँ मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर लड़कों को क्या मिल रहा है, कोई लड़की अच्छा कंटेंट बना रही है तभी उसको मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अलग कंटेंट बना रही है, बट मुझे इग्नोर कर रहा है इस टॉपिक के लिए। मैं लड़की अच्छा कंटेंट डांस कर रही है, थ्रेड्स गंदी बात है ना, अभी कॉमेडी कर रही है, थ्रेड्स गंदी बात है, जिन लड़कों की हमारे देश में वीडियो नहीं हुई उन वीडियो की वजह से वो ऑलरेडी परेशान है, आप करने वाली उन वीडियोज़ पर मीम बना, और हम लड़के हम पढ़े लिखे लड़के ठीक है जिनको सोशल मीडिया चलाना नहीं आते उन्हें हम लिंक शेयर लिंक मांग रहे हैं, हम शेयर I will end this video here, but ये वाला यहाँ पर देखने का, but I completely agree with him. If you're watching this video by any chance, I agree with you completely on this. Well done. I am in full support, bro. This is like mad insanity. I don't know how will we even change. I guess we left the word humanity or empathy in like 2014 or 15 somewhere. I don't think it exists anymore, and I guess we just in the hating era. Because even I have seen like random hate, like it just comes out of either it's like jealousy or something, but it's just random hate, like why you hating. But nevertheless, what I wanted to say, I said it. One tip to you guys, whoever is watching my video, anytime you see one controversy or a news, please look it from each and every perspective. Every single time whenever you see a news, it's a whole circle, it's a big circle that you don't know of. You only see like small part of it, but it's like the other part that you haven't seen. So see it from every single point of view, and if it's clear, it's clear. The victim is right there, and please stop being against the victim always. I have seen people be against the victim. I have seen people be against Atul Subhash. I have seen people be against the girl in West Bengal that was murdered and sexually abused. That's not what you do, man. Stop being against the victims. Be with them. They did not deserve it. They did not do it. They did not. Be with them, okay? That's all. I'm gonna end the video here. Bye.